Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. Hello everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the chapter The Human Eye. In the first part of the video, we have already covered what is the importance of human eye, how is it helpful for us, and what are the different parts through which eye is made and what are their functions. For example, we have discussed about the cornea, iris, pupil, aqueous humor, eye lens, retina, and so on. Today's video is its continuation, the part 2, in which we are going to cover many other topics related to the human eye. So kindly watch the video and subscribe to my channel, and if you find the video useful, please give it a like. So let's start now. So the first topic for today is how do we see colors. बच्चों लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी रेटिना होती है विच इज़ आर लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, उसमें दो तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं विच इज़ योर कोन सेल्स एंड रोड सेल्स. उन दोनों के ही फंक्शन हमने पढ़े थे. इफ़ वी टॉक अबाउट कोन सेल्स हेल्प अस to see different type of colors, whereas rod cells help us to see even in dim light. So इसी से हम लिंक करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो इस डायग्राम में हमें बहुत सारे कलर्स विजिबल हैं. सिमिलरली रेनबो में हम देखें तो हमें रेनबो में डिफरेंट 7 कलर्स विजिबल होते हैं. हम क्यों उन कलर्स को देख पाते हैं? उन कलर्स को देख पाने का बच्चों रीज़न यही है कि हमारे आईज में जो रेटिना होती है, हमारी लाइट सेंसिटिव स्क्रीन, उसमें कोन सेल्स प्रेजेंट होते हैं. These cone cells respond to the colors of the incident light. Then what happens? Then these cone cells become active in bright light and makes different colors visible to us. Okay ji? Also, this is how cone cells help us to see different colors. I hope ये topic आपको clear हो गया होगा that how are we able to visualize different colors. So ये topic हमारे last topic का ही continuation था. Now we'll discuss some new terms which are related to the human eye. The first term is blind spot. नेम से हम थोड़ा सा इसको लिंक करके याद रख सकते हैं. ब्लाइंड स्पॉट क्या है? बेसिकली आप ये डायग्राम देखिए. अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ब्लाइंड स्पॉट को लेबल किया गया है. कहाँ पर लेबल किया है? इट इज एग्जैक्टली प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ रेटिना एंड द ऑप्टिक नर्व्स. द प्लेस वेयर द रेटिना, दैट इज योर light sensitive screen, and the optic nerves meet. That place exactly is known as the blind spot. It is basically a small area, a spot. How can we define blind spot? Blind spot is the spot on the retina where optic nerves connect to the retina, right? And main जो हमें याद रखना है blind spot की characteristic क्या है बच्चों, वो ये है that no rod cells or cone cells are present at the blind spot. So this you all have to remember, okay? And क्योंकि ना तो यहाँ पे कोई rod cells present होते हैं ना ही कोई cone cells present होते हैं, so we can say that blind spot is basically insensitive to the light. Okay? चलो. Now ब्लाइंड स्पॉट हमने समझ लिया क्या होता है. अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्किंग ऑफ द ह्यूमन आई. इन जनरल हमें थोड़ा सा आइडिया है कि कैसे हम चीज़ें देख पाते हैं, बट एग्जैक्टली अगर आप ह्यूमन आई की वर्किंग समझ लो तो आपको पूरा प्रोसेस क्लियर हो जाएगा कि हम किसी भी ऑब्जेक्ट को कैसे विजुअलाइज कर पाते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद इट. फर्स्टली व्हाट हैपन्स, हमें पता है एक सोर्स ऑफ लाइट होता है. फर्स्ट पार्ट में हमने इनिशियली डिस्कस किया था. उस सोर्स ऑफ लाइट से लाइट रेज किसी ऑब्जेक्ट पे फॉल करते हैं. ये लाइट रेज जब ऑब्जेक्ट पे फॉल करते हैं तो उससे रिफ्लेक्ट होते हैं. नाउ व्हाट हैपन्स इज दैट दिस रिफ्लेक्टेड लाइट गोज टू द कॉर्निया एंड passes through the cornea and the pupil of the human eye. Once they pass through the cornea and the pupil, these light rays reaches the eye lens. What does the eye lens do? We have already studied the function of eye lens in the previous part. The eye lens converges these light rays to form a real, inverted and diminished image of the object on the retina. So किस तरह का इमेज बनता है, ये पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है. What is the nature? Real and inverted.
एंड जो साइज हो जाता है इमेज का वो डिमिनिश बनना चाहिए। बट क्या एक्चुअली में ऐसा होता है बच्चों? जब आप कोई ऑब्जेक्ट देखते हो क्या वो आपको अलग साइज में दिखता है नॉर्मल से? नहीं, इट इज द सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। और क्या आपको इमेज इन्वर्टेड विच मीन्स अपसाइड डाउन दिखती है? नहीं, हमें तो इमेज एज इट इज दिखती है। अगर कोई सीधा खड़ा है तो हमें सीधा दिखेगा, अगर कोई उल्टा खड़ा है तो हमें उल्टा विजिबल होगा। तो ऐसे कैसे? आई लेंस ने तो इन्वर्टेड इमेज बनाया। देन व्हाट हैपेंड? लेट्स सी टू दैट। नाउ डायग्राम में आप देख सकते हो एक्चुअली में हमारी रेटिना में इस तरह की इमेज बनती है। सो इफ यू आर viewing a tree of this particular size, you will see such an image, inverted and diminished image on the retina. Okay? Now what happens next? अब नेक्स्ट जो फंक्शन आता है वो आता है रेटिना में प्रेजेंट लाइट सेंसिटिव सेल्स का। व्हाट डू दे डू? These light sensitive cells activate and generate electric signals. Then, as you can see here, electric signals are generated. Then these electric signals are sent to the brain by the optic nerves. So finally, रिफ्लेक्टेड लाइट कॉर्निया और प्यूपल से पास होकर आई लेंस तक जाती है। आई लेंस उसको कन्वर्ज करके एक रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड इमेज बनाता है रेटिना पे, एंड रेटिना में प्रेजेंट सेल्स इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भेजते हैं किसको? ब्रेन को, थ्रू दी ऑप्टिक नर्व्स। नेक्स्ट व्हाट हैपन्स इज, this is the most interesting part. What happens to these electric signals? The brain interprets these electric signals in such a way that we see an image which is erect and of the same size as the object, which is a very interesting point, है ना? कि इमेज बनाया तो आई लेंस ने इन्वर्टेड था, डिमिनिश था, बट ब्रेन ने उस इलेक्ट्रिक सिग्नल को इस तरह से इंटरप्रेट किया कि वो ऑब्जेक्ट को सेम साइज का देखता है एंड एज इट इज इरेक्ट इमेज देखता है। So this is how finally the human eye works and how exactly we are able to visualize or see anything around us. I hope the working of human eye is clear to everyone here. If you have any doubt till here, you can mention it in the comment section. Now in the remaining part of the video, we'll discuss few terms which are often related to the human eye. The first such term is persistence of vision. अगर आपको परसिस्टेंस वर्ड का मीनिंग पता है तो आप इसको याद रख सकते हो, एक बार समझ आ जाएगा, उसके बाद आप इसको नहीं भूलोगे। परसिस्टेंस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? परसिस्टेंस मीन्स परसिस्ट करना, ठहरना, रुकना एंड एक जगह पे कंटिन्यूएशन में रहना। जैसे कुछ हम अपने बिहेवियर से कई बार इसको रिलेट करते हैं। हम बोलते हैं दैट यू नो शी हैज़ अ परसिस्टेंट बिहेवियर। वो यही चीज़ बार बार कॉन्टिन्यूसली करती है, वो अपनी बात पे टिकी रहती है। शी इज़ परसिस्टेंस इन हर एक्शंस। सो दैट इज़ व्हाट एग्जैक्टली परसिस्टेंस ऑफ विजन इज। समझते हैं इसको टेक्निकली। व्हाट हैपन्स? द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ द आई डज नॉट फेड अवे इंस्टेंटेनियसली. It remains on the retina for about 1/16 of a second even after removal of the object. So what does the statement means? The statement says that आपको जो इमेज दिख रही है बच्चों रेटिना पे, इमेज फॉर्म हो गई, आपको ऑब्जेक्ट की इमेज दिख गई, मतलब जो ऑब्जेक्ट था आपको उसकी इमेज दिख गई आई लेंस पे पास होने के बाद, रेटिना पे फॉर्म होने के बाद। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो इमेज बन गई ना वो एकदम से फेड अवे नहीं होती, लाइक विद इन द मोमेंट फेड नहीं होती। वो इमेज हमारी रेटिना पर ही रहती है फॉर अबाउट 1/16 ऑफ अ सेकेंड। व्हाट डज दैट मीन? अगर एक मूविंग ऑब्जेक्ट है तो वो ऑब्जेक्ट मूव करके आगे निकल चुका है, बट आपको फॉर 1/16 सेकेंड, विच इज अगर हम लार्ज स्केल पे देखें तो हमें बहुत छोटा टाइम लगेगा। सो फॉर 1/16 सेकेंड वो इमेज अभी भी वहीं पे है, बट अगर हम स्मॉल स्केल पे देखें सो इट इज अ वेरी बिग वैल्यू। ओके, सो परसिस्टेंस ऑफ विजन से हमें क्या याद रखना है कि जो हम इमेज देख रहे हैं किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमारी रेटिना पे एकदम से फेड नहीं होती, कुछ टाइम के लिए वहीं रहती है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव भी कर जाता है उसकी इमेज हमें वहीं पे दिखाई देती है कुछ टाइम के लिए। क्लियर? इसी को अगर हम थोड़ी सिंपलर लैंग्वेज में डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं? दैट परसिस्टेंस ऑफ विजन इज अ ट्रिक ऑफ द ह्यूमन आई दैट अनेबल्स द ब्रेन to preserve
an image on the retina for a short period of time. सो बेसिकली हमारा ब्रेन जो इमेज थी रेटिना पे उसको प्रिजर्व करके रखता है, उसको हमें वहीं पे दिखाता रहता है एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए. दैट इज 1/16 ऑफ अ सेकेंड. सो इसका आप ये बताओ 1/16 तो चलो सेकेंड का बहुत छोटा पार्ट है, बट अगर यही परसिस्टेंस ऑफ विजन 1 सेकेंड तक होता तो क्या होता? कैन यू इमेजिन? इसका मतलब एक ऑब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल एक कार है, एक कार या एक बस है, वो 1 सेकेंड पहले वहां से जा चुकी है, पर हमारे ब्रेन में उस कार की इमेज 1 सेकेंड बाद भी वहीं पे है. तो हमारे लिए रोड क्रॉस करना would have been such a difficult task and it would have increased the accident so much because object तो जा चुका है, हमें वहीं पे दिखाई दे रहा है ना. So it would have been so much chaos and it would have been very difficult to perform even our daily basis task. So it is good that the persistence of vision is only for 1/16 of a second. I hope you find the topic interesting. Now what we have to understand is what is the application of this persistence. There are few applications of this in our real life. For example, जो आप motion pictures देखते हो, animations देखते हो, cartoon movies देखते हो, so is it possible कि वो cartoon actually में exist करता है या वो walk कर रहा है? Actually में तो cartoon walk नहीं कर रहा, बट आपको वॉक होते हुए दिख रहा है. तो एक्चुअली में क्या है, वो इमेजेस होती हैं कार्टून के स्टेप्स लेती हुई अलग अलग, जिनको हम एक साथ जब देखते हैं तो हमें एक इल्यूजन आता है जिससे हमें लगता है दैट दैट कार्टून इज वॉकिंग. या जो लिपसिंग मूवमेंट है कार्टून के, उनकी पिक्चर्स होती है, जब उनको एक फ्रेम में कंबाइन किया जाता है तो इल्यूजन आता है दैट दैट कार्टून इज स्पीकिंग. सो दिस इज बिकॉज ऑफ परसिस्टेंस ऑफ विजन ओनली. What happens? In motion pictures, pictures are simply a series. इसको करेक्ट कर लेना स्टेटमेंट में. इन मोशन पिक्चर्स, मूवी बोल सकते हैं, वीडियो बोल सकते हैं. वीडियो आर सिंपली अ सीरीज ऑफ पिक्चर्स. When projected in sequence, these pictures give the illusion of motion, as I explained to you. Another application होता कैसे है वो ये एक्सप्लेन किया हुआ है. If you see 16 pictures in 1 second, and these pictures are logically sequenced, you will perceive the pictures as being in motion. आपको वो ऑब्जेक्ट मूव होता हुआ मोशन में या कोई भी एक्टिविटी करता हुआ विजुअलाइज होगा. बट ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, अगर लॉजिकली सीक्वेंस नहीं होगा तो वो हमें पिक्चर्स की फॉर्म में ही दिखेगा. अगर लॉजिकली सीक्वेंस्ड होगा, एक पैटर्न बन रहा होगा, तो हमें एक मूवी जैसा, एक वीडियो जैसा विजिबल होगा. ठीक है जी, चलो. परसिस्टेंस ऑफ विजन टर्म क्लियर है. The next term is power of accommodation. What is power of accommodation? देखो, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं. जैसे कई बार क्या होता है बच्चों, हम फॉर एग्जाम्पल एक बुक रीड कर रहे हैं. सो बुक का जो टेक्स्ट है वो भी आपको बिल्कुल क्लियर है, आप बिल्कुल फोकस से सारा टेक्स्ट रीड कर पा रहे हो. इफ सडनली समवन आस्क यू टू सी अ बोर्ड विच इज वेरी वेरी फार अवे, है ना, देन suddenly as soon as you move your eyes from the book to the board is exactly clear to you. जितना फोकस आपको नियर बाय ऑब्जेक्ट आपकी बुक पे मिल रहा था, जैसे आप ऊपर देखते हो उतना ही फोकस आपको उस दूर वाले ऑब्जेक्ट पे, उस बोर्ड पर भी मिलता है. तो ये जो हमारा एकदम से एडजस्टमेंट है, एकोमोडेशन है, कि हम पास वाले ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर पा रहे हैं एंड दूर वाले ऑब्जेक्ट पे भी फोकस कर पा रहे हैं. दिस इज ओनली नोन एज पावर ऑफ एकोमोडेशन. वी कैन से दैट इट इज पॉसिबल फॉर आवर आईज टू बी एबल टू सी डिस्टेंट एज वेल एज नियर बाय ऑब्जेक्ट्स विथ सेम क्लैरिटी बिकॉज ऑफ आवर आईज पावर ऑफ एकोमोडेशन. अब ऐसा होता क्यों है, कौन हमें हेल्प करता है इस फोकस को बनाने में? दिस इज द रोल ऑफ सिलियरी मसल्स. एग्जैक्टली सिलियरी मसल्स हमारे आई लेंस को हेल्प करते हैं कि वो अपना फोकस बनाए, पास वाले ऑब्जेक्ट पे भी उतनी ही क्लैरिटी से एंड दूर वाले ऑब्जेक्ट पे भी. सो वी कैन से दैट पावर ऑफ एकोमोडेशन is due to the ability of our eye lens to adjust its shape and focal length using ciliary muscles. ठीक है जी, I hope this term is clear to you. So we have discussed many new terms related to the human eye till now. We have discussed about the blind spot, we have discussed about the persistence of vision, we have discussed about the power of accommodation.
All these terms are important from the exam point of view also and their application in daily life also, right? चलो जी, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म पे चलते हैं, नियर पॉइंट ऑफ द आई. अगेन जो टर्म है उसी से हम इसको लिंक करके याद रख सकते हैं. हमारी आई का नियर पॉइंट कैसे डिफाइन करेंगे इसको? द मिनिमम डिस्टेंस एट विच ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन क्लियरली without strain by the human eye is called near point of the eye. I hope you have understood. Basically क्या कह रहे हैं हम यहाँ पे, that जो मिनिमम डिस्टेंस आप क्लियरली देख सकते हो अपनी आई से, जिस मिनिमम डिस्टेंस पे आपको ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली दिखता है विदाउट एनी स्ट्रेन, उसको हम क्या बोलते हैं? नियर पॉइंट ऑफ द आई. एंड ये ह्यूमन आई के लिए जब मेजर किया गया तो इट वॉज फाउंड आउट टू बी नियरली 25 सेंटीमीटर फॉर अ नॉर्मल आई. इसका मतलब क्या है बच्चों कि जब आप 25 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे देखते हो तो आपको कोई भी ऑब्जेक्ट बिल्कुल क्लियरली विजिबल होता है. ठीक है जी. चलो, इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा फार पॉइंट ऑफ द आई. इट विल बी एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ द नियर पॉइंट ऑफ द आई. क्या होगा फार पॉइंट ऑफ द आई में? इट इज द फारदेस्ट पॉइंट अप टू विच द आईज कैन सी ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट एनी स्ट्रेन. मतलब जो सबसे दूर का डिस्टेंस आपको दिख रहा है आपकी आईज से बिल्कुल क्लैरिटी के साथ, और आपको आईज पे कोई स्ट्रेन नहीं आ रहा उस ऑब्जेक्ट को देखने में, उस डिस्टेंस तक को देखने में, दैट इज योर आईज फारदेस्ट पॉइंट. तो अगर हमारी आईज में कोई डिफेक्ट नहीं होता, इट इज नॉर्मल, देन द फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द आई इज इन्फिनिटी. मतलब आप बहुत 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 दूर तक के डिस्टेंस को भी क्लैरिटी से देख सकते हो इफ यू हैव नो डिफेक्ट इन योर आईज. आई होप इट इज क्लियर टू यू. एंड जो नेक्स्ट और लास्ट टर्म है हमारे इस वीडियो का वो बहुत ही सिंपल है, दोनों से लिंक्ड है. रेंज ऑफ विजन. व्हाट इज रेंज ऑफ विजन? बेसिकली एक ह्यूमन आई कितना देख पाती है ना. सो द डिस्टेंस between the near point and the far point of a normal eye is known as its range of vision. So it is very obvious हमारी normal eye का range कितना होगा बच्चों? Yes, correct. 25 centimeter to infinity. So this is our range of vision if we are not suffering from any defect. Clear? सो आई होप कि आज की वीडियो में जितनी भी डेफिनेशंस, जितने भी न्यू टर्म्स हमने डिस्कस किए हैं वो आप सबको क्लियर होंगे. इफ़ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ दिस टर्म्स प्लीज़ मेंशन इट द कमेंट सेक्शन. इस वीडियो का एक थर्ड पार्ट और रिमेनिंग है बच्चों, आई विल अपलोड इट सून, जिसके अंदर हम डिफेक्ट्स ऑफ विजन एंड विजुअली चैलेंज पर्सन के लिए क्या क्या चैलेंजेस होते हैं, कैसे हम उनकी हेल्प कर सकते हैं, ये टॉपिक्स भी कवर करेंगे. थैंक यू सो मच.